Hey everyone, this is Sagar once again, and today I'm going to teach something very interesting which can be useful in your day-to-day life a lot. So make sure you watch the full video. Thank you so much. So guys, today we are going to study something very interesting, something very important, something very important in your day-to-day life. If you go out of country, or if you are in your own country working in a particular sector, educational sector or any place you are working, you need these words. And the best thing about these words, you have been using them since your childhood. The first day of your school class or any class you have attended, there you used these words. So do you remember this position in your school time when you were going? Your hand was like this, teacher was sitting here. Your hand was like this from the door. What were you saying that time? When you were entering into your class, you were saying something, you were asking for something. Everybody has said this. Two students have raised their hand. Ritik, I know you know. Yes, speak louder, okay? Is it my class? Oh, very good. You are going to the class and asking, is it my class? No, you will not. Ritik? May I come in? Yes. How many of you have asked to your teacher, may I come in, ma'am? Were you doing this in your school time? How many of you have said this in your childhood? No? Yes, sir. Said it or not? I studied in Hindi medium, but still in my school we used to ask, ma'am, may I come in, ma'am? May I go to washroom, ma'am? Okay. This was very, very common. So now we are going to study, modal verbs. Have a seat, sir, please. Modal verbs. Any guess what are modal verbs? When I'm asking to my teacher, may I come in? In this sentence, there is one word which is called a modal verb. Raise a hand if you know. What is that word which is called a modal verb? No guess? No idea? Me? May I come? May I. May is your modal verb here. And the best thing here is that we have only two rules with modal verbs. How many rules? Two rules. Is it clear? So let me write down here. Does anybody know the rules we can use with modal verbs? Yes, Pratigya? Then modal verb MV means modal verb plus subject plus subject. plus first form of verb. Very nice. Thank God you didn't say verb the first form. Right? She was supposed to say verb the. She said first form of verb. Usually it happens verb the. It seems like you are going to abuse. आपको ऐसा लगता है कि गाली निकालने वाले हो verb the. Right? So it's not verb the. It's first form of verb, second form of verb, third form of verb. Okay? Never say verb the, second form, verb the, first form. Okay? So that's not good. Clear everyone? Yes, sir. So first form of verb plus. Object. Very good. Okay, next rule. Yes. Subject Yes. plus modal verb Plus modal verb. plus first form of verb Yes, first form of verb. plus object. Plus object. There are two rules only, guys. Okay. B rule. Yes. Thank you so much, Pratigya. Okay, so we have two rules here. As we have been, learning English for many days, and I have uploaded already some of the videos on YouTube. First step, second step, third step, fourth step, fifth step, sixth step is also done. Am I right? Yes, sir. I don't know what step is it going to be, but in those steps I have already taught you few things, like how to follow a structure. Right? Modal verb is may. When I say may I come in, please listen to my sentence carefully. May I come in. If you want to note it down, you can note it down on your notebook as well. In this sentence, which rule am I using? Do not answer until I do not ask. Okay? May I come in. Am I making this sentence with rule A or rule B?
whatever is your answer, write it down on your notebook. It's okay if it is your first day, it's okay to go wrong. Right now I'm just telling you or asking you to try. When you try, you can be wrong, you can be right, it's completely fine, you can also try. The right answer is, yes, what is the right answer, A or B? May I come in? A? Yes, the right answer is A rule. Can anyone tell me why A is the right answer? Because I am saying may I come in. May is the modal verb. Are we using may means modal verb in the beginning in the rule A or B? हम मॉडल वर्ब को रूल ए में पहले नंबर पे यूज कर रहे हैं कि रूल बी में? पहले नंबर पे मॉडल वर्ब है, रूल ए में मॉडल वर्ब फर्स्ट आ रही है. एम आई राइट? सो इट्स नॉट राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम यूजिंग इट फॉर permission. I am taking a permission with the help of a modal verb. May I come in? Ma'am says yes, please come in. Okay, but ma'am says come in. Yes, sure. Okay, if you are late they say no, stay outside of the class, as he was saying, right? क्या आपको पता था बचपन में मे मॉडल वर्ब है? किसी को पता था? क्या आपको पता था आप इस रूल के साथ बना रहे हो ये सेंटेंस को? नहीं पता था. मतलब आपने एक सेंटेंस को ही सिर्फ याद करा हुआ था, इसीलिए आप मे आई कम इन, मे आई गो टू वॉशरूम से आगे नहीं बढ़ पाए. बट आज तो हम बढ़ेंगे. इज इट क्लियर? आज हम और भी परमिशंस मांगेंगे जो भी हम मांगना चाहते हैं. इज इट क्लियर? मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे नॉर्मली बता देता हूँ. मॉडल वर्ब क्लियर होगी सभी को? सब्जेक्ट हमने ऑलरेडी सीखा हुआ सभी ने ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई टॉट यू. और अगर किसी ने नहीं सीखा है, हु आर वॉचिंग माई वीडियो, I have already uploaded the videos on my YouTube channel on subjects and other things as well. Right, everyone? Yes, sir. Then after V1 means first form of verb. Do you guys know about first forms of verbs? Yes, sir. Okay, I can write some common forms of verbs so you will not face problem like go. I am not asking you, to learn first form, second form, third form. In the school time, I was being beaten by my teachers multiple times because of the verbs. मुझे बस एक easy सा pattern आता था. ED लगा दो. कोई भी वर्ब होवे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ लगा देना? ED. How many of you did it? School time. वर्ब्स का पता नहीं होता था. ठीक है, जो वर्ब अच्छी लग रही है उसके साथ लगता ED मैक्सिमम ठीक हो जाती थी. ये चीज़ें हम पता क्या बात थी, वी नेवर अंडरस्टूड देम. और मुझे अभी ज़रूरत नहीं है. मैं नहीं चाहता हूँ आपको, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको सेकेंड फॉर्म आती है कि नहीं आती, आपको प्ले की सेकेंड फॉर्म पता है कि नहीं पता. आई डोंट केयर. वाई? मुझे नहीं चाहिए अभी. राइट नाउ वी आर जस्ट लर्निंग अबाउट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो सीख लो इसे यूज़ कैसे करना है. राइट? और वर्ब्स क्या होती हैं? एनी एक्टिविटी. अभी मैं क्या कर रहा हूँ? राइट भी क्या है? एक्टिविटी, और यू कैन से अ वर्ब. हर एक एक्टिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड बना होता है उसे हम उसे हम एक्शन वर्ब्स कह देते हैं. बट वी कैन कॉल देम एक्शन वर्ब्स. क्यों? क्योंकि वो हमारी एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब करने में हमें हेल्प कर रहे हैं. बाकी मैं क्या कर रहा हूँ? टीच. आप क्या कर रहे हो? स्टडी भी वर्ब है, लर्न भी वर्ब है. सी. ओके. वॉच. टेक. ओके. शूट. whom do you want to shoot? Okay, video shoot. Okay, got it. So these are the basic first forms of verbs which we usually use in our day-to-day life. Okay, everyone, I hope you know the meanings of all of them. Do you guys know the meaning of all these verbs? Very good. Okay, so first rule is saying, guys, please learn this thing. It's very, very important, especially sir you, because you struggle a lot with this and others as well. We will follow the rules. Many times what happen, हम रूल का एक रट्टा लगा लेते हैं, फिर सेंटेंस का भी रट्टा लगा लेते हैं. सेंटेंसेस को भी याद करना शुरू कर देते हैं, रूल्स को भी याद करना शुरू कर देते. दिस इज द वर्स्ट वे टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. हमने रट्टे बिल्कुल नहीं लगाने. सामने लिखा हुआ है, मैं तो कह रहा हूँ चीटिंग करो. क्या करना है आपने? चीटिंग करनी. कैसे चीटिंग करनी है? सामने क्या लिखा हो पहले नंबर पे? ए में मॉडल वर्ब हमारी क्या है? मे.
आपने अपने लिए परमिशन लेनी तो आप क्या यूज करोगे? I. आई क्या है? Subject. Okay, then after you need to use verb. Now you need to think. Okay, when you were coming into the class, may I come in, ma'am? Okay, if I have to take a permission from you guys, may I take your notebook? May I teach another verb? May I teach object is another verb. I'm taking a permission. Okay, may I teach only in English question mark. Don't forget your question mark, right? May I teach only in English? Yes or no? Yes, sir. Are you able to understand me in English? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Oh my god, you are already good at English then. Yes. So what did I ask you? May I teach you only in English? Yes. Okay. May I teach only in English or may I teach you? Both are right. May I teach you only in English? If you say yes, that's fine. Is it clear, everyone? Sir. Can you take one permission which you really want to? Okay. With the help of me. I don't want to listen to may I go to washroom, may I drink water. Something different. Okay. Let me give you some situations. Okay. Vinod ji. Yes, sir. You need my markers. How will you ask me? Suppose my markers are here. Okay, kept on my table. How will you ask me? Sir, May I? take this marker? Yes, little more confident. Don't be so much worried or nervous about your mistakes. If you make a mistake here, I will correct you. May I take your markers? Okay, perfect example. Is it clear? Now, if you have to take any permission from me, how can you take it? Any permission. Can you try? Raise your hand if you can. Simply follow the structure and trust me. How much practice you do, that much development you will have or improvement you will have in your English. If you stay quiet, you do not make examples, you will keep struggling. Okay? Yes. Anyone? शुरुआत तो easy है. May I choose a verb, complete your sentence. You can do it, I know. May I take your laptop? Oh, sorry, sir. That's very personal. I'm so sorry. Did you notice what did I say? मैंने उन्हें ना नहीं बोला क्योंकि नहीं no, that would be little rude answer. What did I say? Sorry. अगर आप किसी को प्यार से ना करना चाहते हो, sorry. Right now I'm giving you a situation. This is very important and this is very important tense or sentence I could say you can use in your day-to-day life. You are in a meeting and you are getting a call. Okay, that's an important call. How can you take a permission in that meeting to answer this call? How can you take this permission? You are in a meeting and there is an important call you are receiving on your mobile phone. Yes, Pratigya? May I pick my call? May I pick my call? There is a better word than pick. I'm using it also. May I drink? Take this call. Yeah. May I take this call is better. May I answer this call? This is better. Suppose you are in a meeting, you are receiving a call, you can ask, may I answer this call? What can you say? May I answer this call? I can't hear everyone. May I answer this call? Yes, yes. Clear everyone? Okay. This much is clear? Yes, sir. As many examples you can make at your home, that much improvement you can see in your English. Okay, I'll ask you or listen to that example after some time. Okay, let's first complete the video session. But may is not only used for permission. There are some other ways also to use may. लाइफ में हम हर एक चीज़ को लेके श्योर नहीं होते. Am I right? आप सब कुछ श्योर हो कि मैंने करना ही ये होगा ही होगा. आर यू श्योर अबाउट एवरीथिंग इन योर लाइफ? कौन कौन श्योर है हर चीज़ के बारे में? अगर आप लाइफ में किसी चीज़ को लेके श्योर नहीं हो तो फिर क्या यूज़ करोगे? Sir, I know. May I not able to Unsure.
when you are able to answer, may I not able to teach somebody. You are not taking a permission for this. This is something you are telling me. I'm not able to teach. I'm not able to do this. So इसके लिए मेरे ख्याल से वीडियो लर्न इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप में स्टेप 3 में मैंने ये चीज़ सिखाई हुई है कि आपने नेगेटिवली अपनी चीज़ों के बारे में कैसे बताना है. इज इट क्लियर? तो आप वो वीडियो शुरू ज़रूर देखो तो आपको समझ आएगा. याद रखो, एक रूल के साथ सारी इंग्लिश नहीं बोल सकते हो. आपको अब पता होना चाहिए राइट नाउ आई एम टेकिंग अ परमिशन. जब परमिशन लोगे तभी यूज़ कर सकते हो इसे. अगर परमिशन ले नहीं रहे हो, जैसे आप परमिशन नहीं ले रहे हो अपने सेंटेंस में, फिर भी वहाँ पे मैं यूज़ कर रहे हो, ये मेरी वीडियो के टाइम पे हर बार होता ही होता है. ओके, एवरी टाइम अ बुलेट और समबडी कम्स इन बिटवीन एंड डिस्टर्ब्स. ओके, सो क्लियर एवरीवन? समझ आया? तो याद रखो, परमिशन ले रहे हो तभी यूज़ करना है. नॉट एवरीवेयर यू कैन यूज़ इट. When you are not sure or unsure about something in your life, आप लाइफ में कोई चीज़ को लेके श्योर नहीं हो, at that time also you can use may. Is it clear? We can use here the rule be. Okay, you have to just follow the rule about anything you are not sure about. Okay, let me show you. First, it is telling me to use subject. I want to talk about myself, so I will use I. Okay, then the rule is telling me to use modal verb. Okay, means right now we are learning may. I can use I, may. Then it is telling me to use a verb. It means the activity I want to talk about, right? So, I may today. No question mark, full stop. You're not asking any permission here, right? So, I may go out with my friend today. How many of you know the meaning of this sentence? Raise your hand if you know the meaning of this sentence. Sir, in English? Any language you can use. Even I am also speaking Hindi, Punjabi in between. Raise your hand अगर आपको इस सेंटेंस का मीनिंग समझ आ चुका हुआ है. रेज योर हैंड अगर मीनिंग समझ नहीं आया, इस सेंटेंस का मीनिंग नहीं पता अभी आपको. गाइस देख लो, या तो आपकी क्या कहते हैं हिंदी पंजाबी में, बंदे दी या तो हाँ होंदी या तो ना होंदी है. राइट? मैंने पूछा अगर आपको समझ आ गया तो अपना हैंड रेज करो. आप में से कईयों ने नहीं करा. मैंने कहा नहीं समझ आया, फिर हैंड रेज करो. आपने तब भी नहीं करा. फिर मैं क्या समझूँ? ये कहाँ का इशारा है? इसे मैं क्या समझ सकता हूँ? यस, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, अगर इस सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ आया, यहाँ पे जो मे का मीनिंग है दैट इज नॉट श्योर. अगर आपको इस सेंटेंस का मीनिंग समझ नहीं आया तो रेज योर हैंड. 3 स्टूडेंट्स को मीनिंग समझ नहीं आया, 3 स्टूडेंट्स को मीनिंग समझ आ गया. एम आई राइट? अब यहाँ पे अगर मैं मे को हटा दूँ, ओके, आई गो आउट विद माई फ्रेंड. टुडे नहीं आ सकता क्योंकि वो रिपीटेड एक्शन हो जाएगा. आई गो आउट विद माई फ्रेंड, ओके, एवरी इवनिंग. आई गो आउट विद माई फ्रेंड एवरी इवनिंग. तो ये क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस जो आपने सीखा हुआ है. ओके, इट मीन्स ये एक्टिविटी मैं रोज करता हूँ. बट जब मैंने ये कहा मे, पहली बात ये कब की बात होगी? टुडे. ओके, टुडे मतलब अभी तो मैं क्लास में हूँ. इट मीन्स ये किस चीज़ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं? फ्यूचर. नॉट श्योर. मैं बात किस टाइम की कर रहा हूँ? थैंक यू. फ्यूचर की बात कर रहा हूँ. टुडे. मैंने पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा था ओके अपनी वीडियो में, और इस बार मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ. टुडे में देखो 24 आवर्स होते हैं. एम आई राइट? अब काफ़ी टाइम पूरे दिन में से निकल चुका हुआ है. अगर आप अभी टाइम हुआ है 7:18, अगर मैं 7 बजे की बात करूँ वो पास्ट हो जाता है. बट वो पार्ट किसका है? टुडे का ही पार्ट है. बट अगर मैं बात कर रहा हूँ जैसे मैंने टुडे का, तो मैं अभी तो नहीं जा रहा हूँ ना. राइट नाउ आई एम नॉट मूविंग. राइट? तो वो क्या हो जाता है? फ्यूचर. आज अगर मैं कुछ भी 8 बजे, जैसे ये क्लास खत्म हो गई 8 बजे, 8 बजे के बाद करूँगा तो वो क्या हो गया? तो यहाँ पे मैं बात किस टाइम की कर रहा हूँ? फ्यूचर की. और उस चीज़ को लेके मैं क्या हूँ? नॉट श्योर. शायद मैं जाऊँ या ना जाऊँ.
आई मे गो आउट विद माई फ्रेंड टुडे, इट मीन्स ये पॉसिबल है कि मैं शायद ना भी जाऊं, मैं श्योर नहीं हूं इस चीज़ को लेके. एम आई राइट? कैन यू टेल मी एनी थिंग यू आर नॉट श्योर अबाउट टुडे? कोई ऐसी एक्टिविटी जिसको लेके आज आप श्योर नहीं हो कि आप करोगे कि नहीं करोगे, कोई भी एक्टिविटी को लेके. यस, रूल सिंपल है, फॉलो करना बहुत ही ईजी है. कुछ कॉमन वर्ब्स भी जो आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो वो यहाँ पे लिखी हुई हैं. बहुत ईजी है, डरो मत. गलत हो गया मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे हूँ. टेंशन नहीं लेनी आपने अगर आपका सेंटेंस गलत हो जाता तो. सिंपल रूल को फॉलो करो. यस प्लीज. I may sleep late today. वेरी गुड. I may go to the gym. हाँ नाइस. I may see mobile phone. देखो मोबाइल फ़ोन को सी करके क्या ही करोगे, ये तो ऐसे होगा. नहीं वॉच भी क्यों करोगे मोबाइल को? यू यूज़ योर मोबाइल फ़ोन. क्या वॉच ऐसे मोबाइल फ़ोन देखते रहोगे? यू वॉच मूवीज ओके ऑन मोबाइल फ़ोन. एम आई राइट? हाँ मुझे पता है टीवी पे हम कह रहे थे आई वॉच टीवी, बट टीवी पे तो ऑब्वियसली कुछ और तो कर ही नहीं सकते हो. मैक्सिमम गेम्स खेलोगे, बट फ़ोन में काफ़ी चीज़ें होती है करने के लिए. तो आई वॉच फ़ोन डजंट मेक सेंस. ओके इट्स बेटर टू से आई यूज़ माई फ़ोन और आई वॉच मूवीज़. ओके और मे वॉच मूवीज़ ऑन माई फ़ोन टुडे. आई मे वॉच मूवीज़ ऑन माई फ़ोन टुडे. Others? Sir, I want to ask one advanced questions. Hmm. I use for maybe. देखो बी का मीनिंग क्या होता है? बी जो है इसके थोड़े से भाई बहन हैं जिनको आपने ऑलरेडी मिले हुए हो, आप सभी मिले हुए हो क्लास में. जो भी है इस टाइम पे वो बी के भाई बहन को मिला हुआ है. किसी को याद है उनके भाई बहन? Yes sir. I बी के भाई बहन कौन है? 3 स्टूडेंट्स को पता है. हर बार 3 को बता, 3 को नहीं बता होता. यस. सो यस ऋतिक. इज एम आर. सभी मिले हुए इज एम आर के? Yes sir. ये बी उसका उनका भाई है. ओके बी क्या है? इज एम आर का भाई है. जो इन्फॉर्मेशन आप बी इज एम आर से पास करते हो वो इन्फॉर्मेशन अगर आपने पास करनी है एंड आप उस चीज को लेके श्योर नहीं हो तो आप क्या यूज करोगे? Maybe. बी. ओके मैं आपको एग्जांपल बनाता हूँ. When you go to home. नहीं ये गलत है. देखो गो भी वर्ब है और बी भी वर्ब है. आप कह सकते हो आई एम गो टू होम और डू नहीं आना आई एम गो होम. कह सकते हो आई एम गो होम. No sir. ये वैसे भी गलत हो जाएगा. आई मे गो होम. बी नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि बी भी एक वर्ब है. ओके आप ये कह सकते हो आई मे. कई बार क्या होता है, पहले मैं सिचुएशन बता देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए. कई बार आप कहीं पे चले जाते हो, आपका फ्रेंड आपको फ़ोन करता है खड़ा कहाँ पे है, कहाँ पे है अभी इस टाइम पे तू. तो आप कह सकते हो आई मे बी इन शास्त्री नगर. आपकी फ्रेंड से बात हो रही है कहाँ में है तो आई मे बी इन शास्त्री नगर. जब आपने कहा आई मे बी इन शास्त्री नगर तो आप श्योर नहीं हो. आपको आई एम इन शास्त्री नगर तो आप श्योर हो. वैसे तो मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया हुआ है बट फिर भी मैं आपसे पूछूंगा. जैसे यहाँ पे मैंने मे को यूज करा फ्यूचर के लिए. अब इस सेंटेंस में जो मेरा सेंटेंस है इसमें मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट की, पास्ट की या फ्यूचर की. रेज योर हैंड इफ यू नो. आप फोन पे बात कर रहे हो, सिचुएशन प्रॉपर समझाई हुई ना मैं? Yes sir. सिचुएशन पता लगी सभी को? Yes sir. तो इस टाइम पे प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की फ्यूचर की? यस सत्यम. Sir present. वेरी गुड. ओके किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट की. ऑलरेडी आपने इज एम आर सीखा हुआ है. Yes sir. इज एम आर किस में सीखा है? प्रेजेंट में. तो इज एम आर आप रिप्लेस करो विद द हेल्प ऑफ बी. ओके तो आप बात किस करो इस टाइम पे? प्रेजेंट की. इज इट क्लियर? बाकी जो मे है आपको प्रेजेंट की बात करने में भी हेल्प करता है और फ्यूचर की बात करने में भी हेल्प करता है. इज इट क्लियर एवरीवन? बी के साथ मैंने देखा स्टूडेंट को ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, बट अगर छोटा सा एक माइंडसेट रखोगे, छोटा सा माइंडसेट रखोगे, अगर बस इतनी सी बात समझ जाओगे ओके कि इज एम आर को रिप्लेस करने के लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है बी. अगर मैं आई एम ओके सिक, आई एम सिक, हेल्थ की बात कर रहा हूँ, आई एम सिक ऐसे बोलेंगे, बट मैं श्योर नहीं हूँ आई मे बी सिक टुडे.
आई मे बी सिक टुडे। इज इट क्लियर? तो उस टाइम पे आप श्योर नहीं हो, आप शायद आपको फील हुआ बट यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। ओके, आप आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, फीलिंग की बात कर सकते हैं इज एम आर के साथ। Sir. ओके, तो आई Maybe. may be happy, I may be happy today. Okay, means you're not sure. Clear everyone? बट ज़्यादातर कॉमनली ये वाला हम वर्ब्स के साथ ही यूज़ करते हैं। ओके, तो आप मुझे कोई भी अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो। कैन वी कंटिन्यू विद अदर रूल्स? Yes, sir. में एक और हमारी लाइफ के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट को बताने के लिए हेल्प करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लाइफ में ज़्यादातर करते रहते हैं। जब आपके फ्रेंड का एग्ज़ाम होगा, आपके फैमिली में से कोई आउट ऑफ कंट्री जा रहा है या आउट ऑफ सिटी जा रहा है, तब भी आपको मे की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ओके, एंड स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड टू टेल मी, हाँ, मे आई कॉल यू बैक, दैट इज़ परमिशन। ओके, मे आई कॉल यू बैक। याद रखो, ये पता होना चाहिए आप कौन से पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। इसीलिए क्या करा करो, जब आप सेंटेंसेस बनाते हो ना, जैसे यहाँ पे लिख लिया, इसके आगे मैंने क्या करा है, परमिशन लिया, लिख लो परमिशन, ताकि आपको ये रियलाइजेशन रहता रहे कि मैं यहाँ पे इस रूल को परमिशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। इसके आगे ब्रैकेट में लिख लो नॉट श्योर, ये भी लिख लो फ्यूचर में है, ताकि आपको ये रियलाइजेशन रहे। जितनी भी एग्जाम्पल्स बनाओगे आप, उन सभी के साथ ब्रैकेट में लिख दो कि यहाँ पे मैं अनश्योर हूँ चीज़ को लेके, और मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं परमिशन ले रहा हूँ। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, so we can use may for Blessing. blessings. लाइफ में बहुत सारी मोमेंट्स होती हैं, ओके, जहाँ पे हमें ब्लेसिंग्स देनी पड़ती है। एम आई राइट? Yes, sir. तो अब अगर आपने ब्लेसिंग्स देनी है तो मे तो आपकी बहुत ही हेल्प करने वाला है। एक तो कॉमन ब्लेसिंग सभी को पता ही है, Yes, sir. सभी करते हैं, सभी को यूज़ करने आती है वो वाली, बट फिर भी मुझे कई स्टूडेंट्स मुझे डाउटफुल लग रहे हैं इस टाइम पे। ओके, अब यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ करते हैं, ए और बी, जब आपने ब्लेसिंग्स देनी है। वेट, ओके, मैं गौतम से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। ओके, देखो मुझे पता है कि चलो कुछ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये चीज़ का आंसर पता होगा, बट मैं उनसे इसलिए पूछता हूँ स्टूडेंट से जिन पे मुझे थोड़ा डाउट होता है, ताकि वो सीखें। जो स्टूडेंट ज़्यादातर स्टडीज़ में पीछे रह जाते हैं, पता क्या रीज़न होता है, उनको एक हैबिट ही नहीं होती कि मैंने जाके पूछना है डाउट, मैंने अपने डाउट को क्लियर करना है। वो क्लास में आते हैं, क्लास से चले जाते हैं, अपने डाउट्स को अपने साथ ही ले जाते हैं। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो अपने डाउट्स को क्लियर करके ही क्लास से बाहर जाते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स में, जो यूजुअली वीक होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं। तो इंटेलिजेंट और वीक बनने में छोटा सा एक डिसीजन है, टू आस्क योर डाउट्स। नहीं समझ आया कह दो नहीं समझ आया, बट ऐसे भी नहीं कहना कुछ समझ नहीं आ रहा, ये भी एटीट्यूड अच्छा नहीं होता। ओके, कुछ कोई चीज़ सीखी है आपने, उसे प्रैक्टिस करो, चेक करवाओ, गलती हुई है उसे पूछो ये गलत क्यों है, फिर उसे ठीक करो, फिर प्रैक्टिस करो। एंड आई एम वेरी श्योर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो स्ट्रगल करेगा स्टडीज़ में। इज इट क्लियर? अगर ये पैटर्न आप फॉलो करते हो, और रिवीजन ज़रूर करा करो। यस सर। तो एक बहुत ही कॉमन है, सभी ने सुना होगा, प्लीज़ रेज योर हैंड अगर ये बात आपने सुनी हुई है। ब्लेसिंग पहले रेज कर लिया, मैंने तो अभी बोला ही नहीं। मैं यार क्या कर रहे हो यार आप, हिंदी पंजाबी में बात कर रहा हूँ मैं अभी आपसे, मैंने कहा रेज कर लेना यार अगर ये बात सुनी हुई है। मैंने तो बात बोली भी नहीं। Sir, we know. यू नो बट अदर्स डू नॉट नो। विनोद सर क्या बोलने लगा था मैं? लाइक सर किसी को ब्लेसिंग करना है, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू, और पूरा सेंटेंस होता है मे गॉड ब्लेस यू। मे God bless. मे आई मत बोल देना, मे आई ब्लेस यू। ओके, मे गॉड ब्लेस यू आप बोलते हो यूजुअली, बहुत कॉमनली सारे यही बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। जब ये सेंटेंस को होता है, मैं अगर बोल रहा हूँ, यहाँ पे दो रूल्स लिखे हुए हैं, ए और बी। मे गॉड ब्लेस यू, इस सेंटेंस में कौन सा रूल यूज हो रहा है, ए या बी? मे एक मॉडल वर्ब है, गॉड सब्जेक्ट है, ओके, ब्लेस ओके वर्ब है, ओके, यू ऑब्जेक्ट है। मैंने सारा बता दिया आपको। ए, वेरी गुड गौतम जी, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, नाइस। ये बहुत ही ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है टू मेक अ सेंटेंस। मैं इसी नॉलेज के बिहाफ पे आपकी नोटबुक्स चेक करता हूँ।
अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी ना, आप अपनी नोटबुक्स को खुद ही चेक कर लोगे। जब आप लिख रहे होगे ना, आपको रियलाइजेशन हो जाएगा आप गलत लिख रहे हो कि सही लिख रहे हो। जस्ट विद दिस वन थिंग, अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाए कि मुझे स्ट्रक्चर कैसे फॉलो करना है। अब हम भगवान जी को थोड़ा सा रेस्ट करने देंगे। हम भगवान जी का नाम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत कॉमन है, मे गॉड ब्लेस यू। हम इसे थोड़ा बेटर वे से यूज़ करेंगे क्योंकि मे गॉड ब्लेस यू आपने सिर्फ एक सेंटेंस को याद करा हुआ है, आपने ब्लेसिंग्स के लिए मे को अच्छे से यूज़ करा ही नहीं अभी तक। तो रूल कह रहा है फर्स्ट किसे यूज़ करना है, मे, मॉडल वर्ब मे। अब आपने करना क्या है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप चाहते हो कुछ अच्छा हो जिंदगी में, जो भी वो पर्सन है उसका नाम लिख दो आगे सब्जेक्ट में, उस पर्सन का नाम लिख दो। मे के बाद मे लिख दिया हमने, फिर उसके बाद सब्जेक्ट में उस पर्सन का नाम लिख दो, ओके, जिसके साथ आप चाहते हो कुछ अच्छा हो। एंड द पीपल हु आर वॉचिंग मी, प्लीज यू शुड ऑल्सो ट्राई टू राइट डाउन द नेम ऑफ द पर्सन whom you want to give blessings। वीडियो बना रहे हैं ना सर हम, तो व्यूअर्स को भी कह रहे हैं गौतम देख रहा कि ये किसे कही जा रहे हैं, फोन से बातें करी जा रहे हैं सर आज, है ना। ठीक हूँ सर मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके सर, लिया ओ सागर सर ने पता नहीं क्यों ऐसा दिन क्लास है ना घर जाके। यस, लिख लिया नाम सभी ने। अब उस पर्सन के साथ क्या अच्छा हो उसकी एक वर्ब वहाँ पे ऐड करो, कोशिश करो, गलत हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि हमने यूज़ करा ब्लेस यू। अब सपोज मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ, वो पर्सन आउट ऑफ सिटी जा रहा है या आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, ओके। अब उस पर्सन के साथ आप क्या चाहते कुछ अच्छा हो, बहुत कॉमन है ये बात भी, ये मैं बोल ही देता हूँ। सपोज मेरा फ्रेंड जा रहा है ना आउट ऑफ कंट्री, मैं कहूँगा से मे परमिंदर हैव अ सेफ जर्नी। हैव क्या है, वर्ब है। क्लियर एवरीवन? इसके साथ हैज कभी नहीं यूज होगा। मैंने क्या बोला, मे परमिंदर हैव अ सेफ जर्नी। एम आई राइट? और भी काफी ब्लेसिंग दे सकते हो। यस, May you live long. नाइस नाइस, हेल्दी, हेल्थी, थी नहीं आएगा। देखो कितनी खुशी हुई सत्यम को, मुझे ये बड़ा मजा आता है। पता है पहले जब उन्होंने थी बोला तब नहीं बोले, जब हो ये बंदे ने गलती करी है, चाहे आपको भी नहीं पता है फिर भी हमने हंसना होता है। एम आई राइट सत्यम? ये तो हमारा धर्म है, हमने एक बार पता क्या, मैं ना वीडियो देख रहा था, ये थोड़ी इंस्पिरेशनल वीडियो होगी, मैंने शायद ये अपलोड भी करी हुई है। इसमें क्या था, एक अपनी लड़की ना अपनी छोटी सिस्टर को घुमाने के लिए लेके गई कहीं पे, और वहाँ पे ना कोई ऐसी इंटरव्यू लेने आ गए। तो आपको पता है आजकल व्लॉगिंग लोग बहुत करते हैं, लोग रास्ते में रोक लेते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर आपने सही जवाब दिया तो मैं आपको गिफ्ट दूंगा, है ना। तो ना उसकी सिस्टर से ना पूछ लिया, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसकी सिस्टर जो बड़ी वाली थी, उसने ऐसे खड़े होके ना ऐसे अपनी छोटी सिस्टर को देखने लग पड़ी। कहती बताओ, बड़े गुस्से से, कि अगर वो उसकी छोटी बहन ने ना बताया बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। एम आई राइट? तो उसे बेसिकली आंसर नहीं पता था, बट वो छोटी थी, यंग थी, उसे ना इंसल्ट फील होने लग पड़ी कि यार मुझे नहीं पता ना, मेरी सिस्टर मेरे से गुस्सा करके। फिर वो ना बड़ी अच्छी बात हुई, वो जो पूछ रहा था ना क्वेश्चन, उसकी बड़ी सिस्टर से कहता आपको पता है? ऐसे देखो पता तो मुझे भी नहीं है। राइट? बट अगर उस मोमेंट पे उसके सिस्टर से कहते इट्स ओके, गलत हो गया कोई बात नहीं पता आपको, ओहो मुझे भी नहीं पता, तो एटलीस्ट उन्हें इंसल्ट फील ना हो। बट अब हमने कोशिश करनी कि हमें पता हो, चलो गूगल करते हैं, ओके, और आप बता दो हमें क्या है। और उस टाइम पे अगर वो बता देते नो वी डोंट नो, इवन आई डोंट नो, ओके, उसके सिस्टर कह देते इवन आई डोंट नो, उसके सिस्टर को इतनी एम्बैरेसमेंट फील ना होती। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आई डोंट नो कहना कोई इंसल्टिंग नहीं होता, कुछ इसमें ऐसे नहीं आपकी बेइज्जती होगी। बेइज्जती तब हुई जब वो उन्हें पहले देख रहे थे, बाद में खुद को भी नहीं पता, ये इंसल्टिंग है। एम आई राइट? देखो विनोद जी भी हंस रहे हैं, इट्स फनी, इट्स एम्बैरेसिंग। जब आप किसी को देख रहे हो बताऊँ दस खुद को पता नहीं है, ऐसे ही जब हम हंस देते हैं ना, इट्स ओके। आप अगर पता करते सकते हैं हम, इट्स ओके ऋतिक, मुझे भी नहीं पता, ओह अच्छा हेल्दी होता है। हौसला देना या रियलिटी को एक्सेप्ट करना बेटर कह सकता हूँ मैं,
बहुत बार होता है हमें खुद को नहीं कई बार चीज़ें पता होती है, हम छोटे बच्चे हम जिन्हें पढ़ा रहे होते हैं उनमें ऐसे बोझ डाल देते हैं कि उन्हें तो पता होना बहुत ही ज़रूरी है। ये पेरेंटिंग में भी बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। तो वैसे देखो दिस क्लास इज़ फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑल्सो, तो याद रखो कभी भी ये चीज़ें नहीं करनी। ओके, आपका यंगर ब्रदर आपके साथ जा रहा है, ओके, स्कूल में हो या यू आर अ पेरेंट, तो उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं करनी। इट्स हैंडलिंग द सिचुएशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। ओके, बहुत एग्जांपल्स है ऐसी। चलो अब मैं यहाँ पे ओके जिसे मैं ब्लेसिंग देना चाहता हूँ, ओके दैट इज लेट मी थिंक, मे माई ब्रदर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखूं? यस क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा ब्लेसिंग्स में। इज इट क्लियर? यही तो डिफरेंस है। ब्लेसिंग्स देते टाइम क्वेश्चन मार्क नहीं डालना, मे गॉड ब्लेस यू, क्वेश्चन मार्क ऐड करते हो नहीं ना, मे गॉड ब्लेस यू। इसमें क्वेश्चन मार्क तब हम ऐड करते हैं जब हम एक आंसर का वेट करते होते हैं, वी आर वेटिंग फॉर अ पर्टिकुलर आंसर। इज इट क्लियर? तब हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन मार्क। मैंने अगर आप कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, कुछ वेट कर रहे हो आंसर की, मैक्सिमम टू मैक्सिमम करेगा थैंक यू, राइट? So may my brother get his new car this year. This is the blessing. I really want him to get his new car this year. तो ये blessings में चला जाता है। Suppose किसी का एग्ज़ाम है, may आके you are yes. May you get good marks. But I don't have any exam. Okay, may you get good marks in your exam. कोई भी situation हो रही है, okay, कोई भी situation है, आप चाहते हो उस चीज़ में you want to give blessings to that person. ओके, आप उस सिचुएशन को उस सेंटेंस में कन्वर्ट करके बोल सकते हो, स्ट्रक्चर को फॉलो करके। इज इट क्लियर एवरीवन? किसी को भी यहाँ पे कोई डाउट है और कोई कुछ कहना चाहता है बट बता नहीं पा रहा और सेंटेंस बन नहीं पा रहा, मैंने पहले भी बोला वीक और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में छोटा सा डिफरेंस होता है कि वो पूछते नहीं है। तो अगर किसी ने कुछ कहना चाहते हो और अपने सेंटेंस को चेक करवाना चाहते हो, ये सर जैसे मेरे ब्रदर का पेपर है, उसका सेंटेंस कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? पहले रूल को फॉलो करना पड़ेगा। रूल क्या कह रहा है आपको? मे किसको ब्लेसिंग देनी है? माय ब्रदर। मे माई ब्रदर। ओके, तो क्या चाहते हो? मार्क्स अच्छे आए, हाँ जी। तो वर्ड यूज करोगे गेट। मे माई ब्रदर गेट गुड मार्क्स, गुड मार्क्स इन हिज एग्जाम्स। इज इट क्लियर? और नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज कैन। कैन भी एक मॉडल वर्ब है और एक अच्छी बात ये है, अगर आपको मे आ चुका हुआ है यूज़ करना तो कैन भी बहुत इजीली आप यूज़ कर पाओगे, पैटर्न सेम रहने वाले। क्लियर एवरीवन? अगर आपको यहाँ पे डाउट्स हैं तो आपको यहाँ पे भी शायद प्रॉब्लम्स आ सकती है। क्लियर? कैन जो रूल है ये भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर परमिशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। द स्ट्रक्चर वी नीड टू यूज इज हे ओनली। इज इट क्लियर? अब अगर मैंने सपोज मैं दो सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, टेक्स्ट कर रहा हूँ अपने फ्रेंड को, मे आई कॉल यू राइट नाउ, कैन आई कॉल यू राइट नाउ। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कैन आई कॉल यू राइट नाउ, मे आई कॉल यू राइट नाउ। यस, इसमें जो डिफरेंस है मीनिंग सेम है, डिफरेंस है टोन का। मे आई कॉल यू राइट नाउ, कैन आई कॉल यू राइट नाउ। ओके, जब मैं कैन यूज़ कर रहा हूँ मैं थोड़ा फ्रेंडली होके बात कर रहा हूँ, कैन आई कॉल यू राइट नाउ। ओके, मैं आपके साथ बैठ, कैन यू पास मी दिस। ओके, थोड़ी फ्रेंडली टोन आ रही है मेरी। मे यू पास मी दिस मार्क, ये थोड़ी रिस्पेक्टफुल टोन है, थोड़ी पोलाइटली मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद आप मेरे फ्रेंड नहीं हो, मैं आपके साथ ऐसे बात नहीं कर सकता हूँ ज़्यादा, है ना, तो इसलिए मैं बहुत ही पोलाइटली आपसे बात कर रहा हूँ। तो जब आप मे यूज़ करते हो आप ज़्यादा पोलाइट साउंड करते हो। जब आप कैन यूज़ करते हो तो आप थोड़ा फ्रेंडली साउंड करते हो, रूड नहीं साउंड करते हो, फ्रेंडली साउंड करते हो। इज इट क्लियर? इन चीज़ों को हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल में क्या होता है, जैसे मेरा रिलेशनशिप सपोज मेरे टीचर के साथ है ना, और प्रिंसिपल मैम के साथ और प्रिंसिपल सर के साथ है मेरा रिलेशनशिप। सो प्रिंसिपल के साथ जो मेरा रिलेशनशिप है वो कंप्लीट फॉर्मल है। बट अगर मैं अपनी बात करूं
अपने फ्रेंड के साथ, मेरा क्लासमेट है, उसके साथ जो मेरा रिलेशन क्या है, इनफॉर्मल. इनफॉर्मल मीन्स फ्रेंडली रिलेशनशिप. फॉर्मल मीन्स रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप. वेरी रिस्पेक्टफुल इट इज. तो आप ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो सकते, वो कहते हैं ना ज़्यादा खिलरना नहीं है. ओके तो आप ज़्यादा नहीं खिलर सकते उस सिचुएशन में. क्लियर एवरीवन? समझ आया? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. इसके बीच में जो मैं रुक गया था टीचर पे, प्रिंसिपल मैम के साथ या प्रिंसिपल सर के साथ जो मेरा रिलेशन है दैट इज फॉर्मल. मेरे फ्रेंड के साथ मेरा रिलेशन वो क्या है, इनफॉर्मल. मेरे टीचर के साथ मेरा रिलेशन क्या है, सेमी फॉर्मल. इसे हम क्या बोलते हैं, सेमी फॉर्मल, जिसमें कुछ हद तक आप फ्रेंडली हो सकते हो बट ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो सकते हो, वेरी फ्रेंडली नहीं हो सकते हो. ओके थोड़ा बहुत फ्रेंडली हो सकते हो. टीचर के साथ होता ही है ना, कई बार आपका बॉन्ड अच्छा हो जाता है, आप एज ए फ्रेंड उनसे बातें करनी शुरू कर देते हो. एम आई राइट? तो वो रिलेशन क्या हो जाता है, सेमी फॉर्मल. ओके कैन थोड़ा फ्रेंडली है, थोड़ी फ्रेंडली टोन हो जाएगी जब आप इसे यूज़ कर रहे होगे, परमिशन के लिए यूज़ कर सकते हो. ओके कैन आई टेक योर मार्कर, कैन आई गो आउटसाइड, कैन आई टॉक टू समबडी, कैन आई टेक समबडीज हेल्प. ओके मेरे साथ भी बात करो तब भी कर सकते हो क्योंकि हम इतना फॉर्मल रिलेशनशिप शेयर नहीं कर रहे. एम आई राइट? अब मेरे साथ भी कैन यूज़ कर सकते हो. कोई जल्दी से मेरे से परमिशन ले सकता है विद द हेल्प ऑफ कैन? श्योर. व्हाई नॉट? Seriously? It's okay. Please. Yes. Can I repeat it? Why not? Can I attend a call? Sorry. Sorry, sir. After the class. Sir, can I write? What do you want to write? Sir, heading model. Can I note down modal verbs? Can I go to the home? Can I go to the home is wrong. Can I go home? Home से पहले हम to use नहीं करते हैं. Can I go home? ये कैसे होता है? Can I go back home? Or can I go home? Is there any other way we can use can for? Yes? Past ability. Past ability. You are wrong here. Ability. Only ability. We can use it for Ability. ability. Now the question is, what is the meaning of ability? How many of you know the meaning of ability? Nobody knows? There are things in your life you are capable of doing them. I am capable to teach. This is my ability. Okay? I am capable to open this. Right? Suppose there is 50 kg weight. How many of you are capable to lift 50 kg? Raise your hand. अगर आप में इतनी पावर है कि आप 50 kg उठा सकते हो. नहीं उठा सकते? आप उठा सकते हो. 2 स्टूडेंट्स कह रहे हैं हम उठा सकते हैं. ठीक है? एंड अगर 5 kg पड़ा है तो कौन कौन उठा सकता है? ये आपकी एबिलिटी है. यू अंडरस्टैंड? द थिंग्स यू आर कैपेबल टू डू, दोज आर योर एबिलिटीज. इज इट क्लियर? इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द एबिलिटी, ओके, देन यू कैन यूज कैन. एंड द रूल हियर वी यूज इज बी. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, आपने कहा कि यस आई कैन लिफ्ट. ओके लिफ्ट एक वर्ब है. एक लिफ्ट तो वो वाली होती है जो आप मॉल्स में जाते हो, है ना, वो आपका वेट लिफ्ट करती है, उसे लिफ्ट बोलते हैं. ओके आई कैन लिफ्ट 50 kg. 50 kg वेट. ओके लिखना चाहो तो लिख सकते हो. और आप कितना वेट लिफ्ट कर सकते हो प्लीज़ उतना ही लिखना. ओके आप 50 मत लिख देना. आप सोचो आप कितना वेट लिफ्ट कर सकते हो. और वेट की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आई कैन सिंग. ओके अगर आप ड्राइव कर सकते हो, आई कैन ड्राइव. ओके क्वेश्चन पूछा मैंने, हाउ मेनी ऑफ यू कैन ड्राइव कार? हाउ मेनी ऑफ यू कैन ड्राइव एक्टिवा और 2 व्हीलर्स? ओके तो आप वहाँ पे लिख सकते हो आई कैन ड्राइव एन एक्टिवा, आई कैन यूज़ मैकबुक, आई कैन मेक वीडियोज़. दीज आर माई एबिलिटीज़. आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन रन वेरी फास्ट. दीज आर माई एबिलिटीज़. इसे कई बार हम कहते हैं कि कोई चीज़ पॉसिबल, एबिलिटी ही कई बार हमें इसे एज अ पॉसिबिलिटी भी यूज़ कर लेते हैं. कोई चीज़ों की पॉसिबिलिटी का होना. ओके जैसे कई बार अब मैंने कह दिया आई कैन सिट देयर, इसमें कोई एबिलिटी और हुनर तो चाहिए नहीं है. कोई हुनर चाहिए इसमें? आई कैन सिट देयर.
ये एक पॉसिबिलिटी है, दिस इज पॉसिबल। आप कोई ऐसी चीज़ें बता रहे हो जो कि पॉसिबल है। आई कैन सिट देयर, ओके। आई कैन गो टू जिम में भी कोई स्किल्स नहीं है तो कई बार उसे हम कह देंगे एबिलिटी नहीं, ये क्या है, पॉसिबिलिटी। क्लियर एवरीवन? Like that, I can stand here. आई कैन स्टैंड हेयर, वो आई कैन स्पीक, तो वो आपने खुद डिसाइड करना है कि आप एबिलिटी की बात कर रहे हो या पॉसिबिलिटी, बट इस चीज़ के कारण कंफ्यूज नहीं होना। इज इट क्लियर एवरीवन? कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप उस चीज़ को लेके कंफ्यूज ना हो जाए। द अनदर मॉडल वर्ब वी आर गोइंग टू यूज इज, वी आर यूजिंग विल। क्लियर एवरीवन? विल इज ऑल्सो अ मॉडल वर्ब। आपने इन्हें फ्यूचर में देखा होगा, जब फ्यूचर टेंस सीखते हो तो विल बहुत यूज़ करते हो। ओके, जब आप मे यूज़ कर रहे हो आप परमिशन ले रहे हो, कैन यूज़ कर रहे हो परमिशन ले रहे हो। विल के साथ ही अगर हम एक सेंटेंस बना ले सेम स्ट्रक्चर फॉलो करके, ए पहले नंबर पे क्या यूज़ होना है, विल, मॉडल वर्ब विल। फिर हमने सब्जेक्ट यूज़ करना है, आई यूज़ कर लो, ओके। विल आई स्पीक इंग्लिश आफ्टर 2 months, ये परमिशन है, No, sir. क्या है ये, Everything नो possible. नो सर हम कर सकते हैं. नो, होगा। Quality. No. Question. इट इज अ क्वेश्चन। विल यू कम टुमारो, विल यू कम माई होम टुमारो, विल यू कम टू क्लास टुमारो, विल यू कम टू द क्लास टुमारो, दैट्स अ क्वेश्चन, ये परमिशन नहीं है। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है स्टूडेंट्स के लिए टू अंडरस्टैंड कि परमिशन में और क्वेश्चन में क्या डिफरेंस रहता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। इसमें आप किसी से एक परमिशन, जैसे क्या होता है कोई चीज़ को करने के लिए यू वांट टू डू समथिंग, और उसमें आपको किसी से एक येस और नो में परमिशन लेनी पड़ती है। एम आई राइट? दैट इज कॉल्ड परमिशन। अगर मैम मुझे कह देंगे नो, ओके, सो आई एम नॉट अलाउड टू कम इन, राइट। मैं कह दूं मे माई ब्रदर कम हेयर फॉर क्लासेस टुमारो, मैं कह दूं नो, तो इट्स मीन्स योर ब्रदर इज नॉट अलाउड टू कम। एम आई राइट? बट अगर मैं विल यूज कर रहा हूं, विल योर ब्रदर कम टुमारो, तो यहाँ पे आपके पास चॉइस है, येस और नो बोल दोगे, इसमें मेरा कुछ नहीं है। इज इट क्लियर एवरीवन? आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ रहे हो यहाँ पे, तो ये याद रखना है, विल वी यूज फॉर अ क्वेश्चन नॉट फॉर अ परमिशन। बहुत स्लाइटली सा डिफरेंस है इसमें, स्लाइट सा डिफरेंस है, सॉरी, ओके, तो आपने वो समझ के करना है। क्लियर एवरीवन? जैसे सपोज आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो और मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और इसमें हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे बी, नो सॉरी, ए, ओके। ए में कह रहे हैं फर्स्ट विल यूज करो, मैंने आप सभी से क्वेश्चन पूछना है विल यू, ओके। क्वेश्चन मार्क। तो इसमें मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि मुझे कुछ चीज़ करने के लिए आप परमिशन दे रहे हो, ये तो मैं आपसे वैसे जनरली पूछ रहा हूँ। विल यू स्टडी एट होम टुडे? Yes, sir. नो, ऑब्वियसली नॉट सर, हम घर से पढ़ के नहीं आते, राइट। कैन यू आस्क मी एनी क्वेश्चन? ट्राई। On activity day, will you play? You said no, I'll not, but I'll make you play. Will you go to the birthday party? Whose birthday party? थोड़ा genuine से क्वेश्चन पूछो, जैसे that was a very genuine question. Okay, will you play, on activity day, or will you play the activity on activity day, right? Will you take test on Saturday? Yes, I will. You were supposed to ask this question. Shit, Gautam. But don't worry, बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। ओके, क्लियर एवरीवन? Yes, sir. अब मे जो था आप यूज कर रहे थे जब आप अनश्योर थे, विल आप यूज करोगे जब आप श्योर होगे, यू आर वेरी मच श्योर अबाउट समथिंग, ओके, देन यू यूज I will go birthday party. I will go to a birthday party. Okay.
जब आप मैंने कहा आई मे गो टू द बर्थडे पार्टी, आई एम नॉट श्योर, देयर आर चांसेस शायद मैं जाऊँ शायद मैं ना जाऊँ, बट इफ आई से आई विल गो टू द बर्थडे पार्टी, इट मीन्स आई विल डेफिनेटली गो देयर. Is it clear? I am sure about this. Can you tell me the activities you are sure that will happen or you will definitely do? Anybody? My mother and I will go to Bathinda. Very good. जो बिगिनर्स हैं वो गो के साथ बना सकते हैं. कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे आपने जाने ही जाना है आज कल परसों फ्यूचर में. ये फ्यूचर में हेल्प करेगा आपको. will help you to talk about only future. Okay. Sure, I will go tuition at 3 o'clock tomorrow. Very nice. I will use mobile phone. नाइस. वर्ब्स आपके सामने हैं. आई यूज करा, आई के साथ क्या यूज करना है? विल. स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? फर्स्ट आई देन विल. फिर इनमें से कोई भी वर्ब आप यूज कर सकते हो और अगर आपको कोई पता है तो आप उनमें से भी यूज कर सकते हो. ओके, जैसे मैं कह सकता हूँ आई विल प्ले पबजी. ओके, आई विल प्ले पबजी. आई विल राइट समथिंग ओके ऑन माई नोटबुक. I will teach you something new tomorrow, or I will teach you about their siblings. I will teach you tomorrow about their siblings. Do you know the meaning of siblings? Brother sister. Clear everyone? तो आप इनसे एग्जाम्पल बना सकते हो. Clear everyone? So tomorrow guys I will teach you about the siblings of me, can and will. And if we get more time, I will teach you something more about modal verbs. And this is all for today. I hope you guys learned something new today. And if there is any doubt, you can watch this video as well. I will upload it as early as possible. कोई प्रॉब्लम आई, कुछ मुश्किल लगा आज के सेशन में? No sir. No sir. सच बोलो, ऐसा नहीं है कि वीडियो बन रही तो हमने झूठ बोलना है. आप बोल सकते हो कुछ प्रॉब्लम आई, मैंने ज़्यादा इंग्लिश में पढ़ाया है, मैंने ज़्यादा इंग्लिश यूज़ करी है. द रीज़न इज़ कि आपको एम्बियंस मिले इंग्लिश वाला. Sir, what is the meaning? एम्बियंस एक एनवायरनमेंट देना जहाँ पे आप ऐसे एक एटमॉस्फेयर में हो जाते, एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो जाते, ऐसे सिचुएशन में होते जहाँ पे इंग्लिश बोली जा रही है. राइट? क्लियर एवरीवन? ये सारे समझ आ गए सभी को? Yes sir. Yes sir. अब प्रॉमिस करो कि आप घर पे जाके इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करोगे. जितनी एग्जाम्पल्स बना सकते हो बनाओ. मैं नहीं कहूँगा 5 बनाओ 10 बनाओ. एज मैनी यू कैन मेक यू कैन. अगर किसी को प्रॉब्लम ज़्यादा आती है मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर देना, मैं आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स और भेज दूंगा. राइट? उनमें से फॉर्म्स ऑफ वर्ब को देखो, सेंटेंस बनाओ. इज इट क्लियर? ओके, थैंक you so much guys for watching this video. If you like this video, don't forget to subscribe to my channel, hit the bell icon and keep sharing my video. Bye everyone. Okay, bye everyone. Bye bye. Good night, sir. Good night. Good night, sir. Good night. Sure.